Now solution exercise question answer 2.34. Here 2.34 क्वेश्चन क्या दिया है? वेपर प्रेशर ऑफ वाटर at 293 Kelvin is 17.535. It means PA0. Calculate vapor pressure of water at 293 Kelvin when 25 gram glucose, है ना, and 450 gram of water will be, again we can say that, taken here. So now glucose, the formula of glucose is C6H12O6 and formula of water is H2O. So whenever we are calculating molecular mass 6C12H 6O, so 6 12 12 1 16. Here 180 gram per mole will come, this one, and Pa is given. So what is A? A is solvent, and what is B? B is solute. A is solvent, B is solute. Clear? Here means C, weight of solute is 25 gram, weight of solvent is 450 gram, molecular weight of solute is 180, and partial pressure of solvent is 17.535. Clear? So now for dilute solution, Raoult's law, here Pa0 minus Pa upon में Pa0 minus Pa upon में Pa0 is equal to weight of solute upon में molecular mass of solute, और ये आपका क्या आएगा? weight of solvent and molecular mass, or we can say that solvent is given. Clear? Capital M will represent molecular mass. तो चलो, तो यहाँ पे क्या करने का? Pa0, here we can say that Pa0 will be 17.535 minus Pa upon में 17.535, तो weight of solute is 25 gram. उसके बाद आपका C, here molecular weight of solute is 180 gram, and here weight of solvent is 450 gram, and then after molecular mass, so molecular mass of, we can say that here molecular mass of water, so this will be, again we can say that here means 18. Clear? Molecular mass of water will be, again we can say that 18. अब इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, है ना? ये जब आप सॉल्व करोगे, here means 1 upon 180 will come, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, here क्रॉस, तो ये स्टेप आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई किया इधर एंड हियर, एंड देन आफ्टर 17.535 कॉमन निकाला, सॉल्व करो, तो Pa is equal to 17.44 mm of mercury will come. This is Raoult's law. Pa0 minus Pa upon Pa0, weight of solute, नीचे molar mass of solute, this is weight of solvent, this is molar mass of solvent will be given. Clear? So this is first condition. Now second one, 2.35, Henry's law constant for the molal of methane in benzene. Clear? चलो ये जैसे सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. क्या दिया है? मीथेन, here methane and this one is benzene is there. Clear? According to question, आपको calculate solubility of methane. You have to find out solubility of methane in benzene 760 mm of mercury. So now according to formula, here we can say that P is equal to KH into X is there. KH is given, P is 760, तो x is equal to P upon में KH, वैल्यू रखो, सॉल्व करो, तो chi is equal to this one, but it will be represented in scientific form. तो scientific form में 1.78 into 10 raised to minus 3 will come. So this is complete information. It means, see, if KH is given, so simple है, if KH will be given, it means we can say that Henry constant, है ना? And what is P? P is partial pressure.
x इज मोल फ्रैक्शन, क्लियर। उसके बाद क्या करने का, p इज पार्शियल प्रेशर, kh इज हेनरी कांस्टेंट, x इज अगेन मिस मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू आप p बाय kh वैल्यू दिया है, सॉल्व करो and whenever your answer will come 178 into 10 raised to minus 5 it will be written in scientific form। तो आपको ये 11th में बताया है चैप्टर नंबर 1 में। आपका यदि आप इस फॉर्म में आंसर लिखते हो तो फुल मार्क्स शायद आपको ना भी मिले, क्लियर। तो एक आपका राउल्ट्स लॉ है और दूसरा आपका हेनरीज लॉ। अब देख हाउ वी कैन फाइंड आउट राउल्ट्स लॉ एंड हेनरीज लॉ। देख हेनरी में तो kh दिया ही होगा तो आपको आइडिया आ जाएगा, क्लियर हुआ कि नहीं। Now question number 2.36, 100 gram of liquid, here 100 gram of liquid, molar mass 140 gram per mole was dissolved, है ना, was dissolved in 100 gram of liquid B। तो ये B क्या है, सॉल्वेंट, और ये A क्या है, A is solute। The vapor pressure of pure liquid B was found to be 500 torr। Calculate vapor pressure of pure liquid A, vapor pressure of A and its vapor pressure in solution। If the total vapor pressure of solution is 475 तो P total is given, ठीक है। Solute is given, solvent is given, clear, and total करना है, मिक्स करना है, मतलब वी हैव टू यूज हियर में डाल्टन्स लॉ वगैरह। चलो यहाँ पे देखो, तो सॉल्यूशन इज इक्वल टू दिस इज, हियर वी कैन से दैट सॉल्यूट A एंड दिस वन इज सॉल्वेंट B। तो वेट इज 100 ग्राम गिवन, वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 1000 ग्राम, इट इज आल्सो गिवन। मॉलिक्यूलर मास 140 एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट इज अगेन इज 180। तो दिस डेटा are given, so this one is again we can say that given। now we will calculate here is mole। तो mole is equal to क्या आता है, weight upon the molecular weight। what is mole, mole मतलब weight upon the molecular weight is given। तो weight क्या है, 100 upon में 140, 1000 upon में 180, सॉल्व करोगे तो Na is equal to 0.714 and Nb is equal to 5.555। so this is mole of solute, as well as we can say that solute, है ना, here we can say that mole of solute and solvent can be determined easily। now total mole, तो Nt is equal to Na plus Nb। तो Na कितना है 0.714, Nb कितना है 5.555, तो total mole is equal to 6.269। here this is total mole। now we will discuss here mole fraction। तो now we will discuss here mole fraction। तो mole fraction of A is equal to Na upon में Na plus Nb। तो यहाँ पे Na की वैल्यू कितनी है 0.714, टोटल कितना है 6.269, तो मोल फ्रैक्शन कितना आ गया 0.114। और ऐसे ही चाई B 1 माइनस चाहिए तो 1 माइनस C 0.114, तो ये आ जाएगा 0.886। in this way we can calculate here is mole fraction of A and mole fraction of B। in this way we can calculate mole fraction of A as well as mole fraction of B। now you know here P total, so P total is equal to Pa plus Pb, both are mixed with each other, therefore P total is equal to Pa plus Pb। तो Pa क्या होता है theoretically, Pa is equal to Pa0 into chai A and Pb is equal to Pb0 into chai B, ठीक है। तो ये फॉर्मूला रख दिया। और व्हाट इज Pa0, तो Pa0 आपको निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट हियर मींस Pa0। तो चाई A कितना है, तो चाई A is equal to point here 0.114, this is chai A। similarly chai B तो 0.886, तो Pb0 how much Pb0, so this is 500 torr, it is given, Pb0 is 500 torr, it is given।
तब आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो PA0 इज इक्वल टू 475 सॉल्व किया तो 280.7 टोर विल कम। नाउ वी नो दैट आपको क्या करना है, हियर वी हैव टू डिटरमाइन PA। तो आपको फॉर्मूला पता है कि PA इज इक्वल टू PA0 इंटू चाई A। PA इज इक्वल टू PA0 इंटू चाई A। तो क्या हो जाएगा, हियर PA0 की वैल्यू कितनी आई, 280.7, ये कैलकुलेट किया, और चाई A इज 0.114, the answer will be 32 torr. In this way we can determine pressure, partial pressure or vapor pressure of solute A. Clear? Now next question is 2.37. In case of 2.37, what will happen? In case of 2.37, vapor pressure of pure acetone, ये रहा एसीटोन, here CH3COCH3 is given, क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये है क्लोरोफॉर्म, है ना, at 328 Kelvin are 741.8, this is 741.8 mm of mercury and 632 mm of mercury respectively। मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एसीटोन कितना आएगा, प्योर एसीटोन इज दिस वन एंड दिस। क्लियर? अज्यूमिंग दैट दे फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन मतलब इट विल फॉलो राउल्ट्स लॉ, एंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन, देन प्लॉट P total, here P total, P chloroform and P of acetone as a function of mole fraction of acetone, function of mole fraction of acetone। Clear? The experimental data observed for different composition of mixture is this one, ये पूरा दिया है। तो plot this data also on same graph paper, indicate whether it has positive deviation or negative deviation from ideal solution। Clear? तो चलो दिया हुआ है, तब पहले क्या करना है, देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन है इनटू 100 है, तो आपको क्या करना है, हियर मेरे को मोल फ्रैक्शन तो मल्टीप्लाई कर दो, तो 11.8 है ना, तो दिस इज 11.8 इंटू 100 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 0.118 विल कम। तो पहले डेटा चेंज करो, है ना, पहले डेटा चेंज करो। हियर वी कैन से दैट मोल फ्रैक्शन से ये आ गया, सबको 100 से मल्टीप्लाई करो। देखिए मैंने प्रूफ बता दिया हाउ दिस 0.118 विल कम, मतलब जो यहाँ पे 100 था उससे मल्टीप्लाई किया तो सब चेंज हो जाएगा 23.4। तो देखो यहाँ क्या करने का, हियर 23.4 इंटू 100 तो क्या आ जाएगा, 0.234 विल कम। Here we can say that 0.234 will come। चलो ये दो डेटा मैंने बता दिए। Similarly, we can find out mole fraction of acetone in other data। Clear? चलो एसीटोन है, ये 0 है, 0, 54.9, ये क्या है 54.9, 110.1, ये वैसे का वैसा है। फिर आता है क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म कितना है 632.8, ये आ गया। अब यहाँ पे देखो 548.1, मतलब सब कुछ डेटा वैसे का वैसा ही लिख देना है। क्लियर? अब निकालना है P टोटल, तो नाउ वी कैन से दैट P टोटल इज इक्वल टू P ऑफ एसीटोन एंड P ऑफ क्लोरोफॉर्म। Here we can say that acetone plus we can say that chloroform will be there। Clear? तो चलो एसीटोन की वैल्यू कितनी है 54.9 और क्लोरोफॉर्म की वैल्यू कितनी है, here we can say that 548.1, दोनों को प्लस करो तो 548.1 प्लस 54.9 तो कितना आ जाएगा 603। Here 603.0 will come, so this will be again we can say that
P total. Clear? In this way, here means P total will come. In this way, here means P total will come. Clear हुआ कि नहीं? ऐसे सब में करने का. तो what is P total? तो P total is equal to partial pressure of, we can say that, chloroform as well as acetone. तो मुझे सबका P total, तो सब डेटा बदल जाएगा. ये देखो सब के सब को प्लस करते जाओ, ठीक है, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, ये आया इक्वल टू और ये इक्वल टू. क्लियर हुआ कि नहीं? तो दिस टाइप ऑफ थिंग विल बी अगेन मिस कम हियर, है ना. तो मुझे P टोटल मिलेगा. आप क्या करेंगे? तो नाउ यू विल हियर प्लॉट ग्राफ किसका. तो देखिए यहाँ भूला हुआ है कि प्लॉट P टोटल, मतलब ये P टोटल है, क्लोरोफॉर्म है, एंड देन आफ्टर P ऑफ एसीटोन. तो चल यदि मैं P, अब आपको ग्राफ पेपर लेने का, वेपर प्रेशर का रेंज रखने का. तो चलो जैसे मैं P ऑफ एसीटोन, मतलब एसीटोन एंड देन आफ्टर वी कैन से मोल फ्रैक्शन. तो 0 पे 0 है, हियर C. तो दिस इज एसीटोन, 0 पे 0. अब उसके बाद क्या आता है? 54.9 पे 0.118 है, 54.9. तो कुछ अप्रोक्सीमेटली किधर आएगा? 54.9. तो ये आता है 54.9 और इधर पे 0.118. तो देख कुछ ये डेटा इधर आता है. ऐसे क्या करो, सब पॉइंट आप बना लो, फिर सब पॉइंट को क्या करना है? आपको ज्वाइन करना है. तो ज्वाइन करोगे तो दिस कर्व शेप विल कम इन केस ऑफ एसीटोन. फिर ये जो लाइन है, ये दो पॉइंट को इसको क्या कर देने का? ज्वाइन कर देना. तो स्ट्रेट लाइन विल कम. क्लियर? समझ में आया कि नहीं? चलो ये तो P एसीटोन. अभी क्लोरोफॉर्म. तो क्लोरोफॉर्म का देखो कितना है क्लोरोफॉर्म. तो क्लोरोफॉर्म इज 6, ये आपका C, मोल फ्रैक्शन 0 से 632. तो क्लोरोफॉर्म के केस में 0, देखिए 632 पहला पॉइंट इधर आता है. फिर ऐसे ही देखिए अलग अलग पॉइंट आएंगे, ये 1 है, 2 है, फिर इसको भी आप ज्वाइन कर देना. एंड सेम कंडीशन विल कम इन केस ऑफ टोटल. तो पहले जो ग्राफ आता है ना सी, जैसे अभी सपोज मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यदि मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करूं, जैसे ही मैंने ग्राफ प्लॉट किया तो कैसा आ जाएगा? हियर वी कैन से दैट ये, अब ये नीचे का आता है. क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये लाइन के नीचे आ रहा है, इसलिए ये नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा. क्लियर हुआ? ये लाइन के ऊपर आता है ना, तो उसको हम लोग पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं. तो whenever we can say the graph will form bottom below side of this straight line, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेगेटिव डेविएशन. अबव साइड, सपोज यही वाला ग्राफ ऐसा होगा, देख ये लाइन के नीचे है तो नेगेटिव डेविएशन. सपोज डेटा चेंज हो जाए, क्लियर हुआ? डेटा यदि आपका चेंज हो जाए और ये ऐसा सी, तो यहाँ पे कर्व ऐसा है ना, और ये दो पॉइंट को यदि मैं ज्वाइन करूं, ये लाइन के ऊपर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? P टोटल. तो P टोटल के यदि ऊपर आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डेविएशन. P टोटल के ऊपर आता है तो दिस वन इज नथिंग बट इट इज ओनली नोन एज पॉजिटिव डेविएशन. P टोटल के नीचे आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन. यदि P टोटल के ऊपर ऐसा कर्व आए तो दैट इज पॉजिटिव डेविएशन, और नीचे आए तो दिस विल बी अगेन वी कैन से दैट नेगेटिव डेविएशन. तो ये मतलब टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं है. अगर यहाँ पे कैसा है सी, ये सब के सब डेटा इधर है, कोई चेंज नहीं है. क्लियर? और ऐसे देखो ग्रीन वाला, तो जो भी वैल्यू है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? सब का सब डेटा. बस P टोटल के टाइम पे वी हैव टू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला. P टोटल इज इक्वल टू, वी हैव टू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला. तो वैल्यू रख दो, here means P total will come. In this plot, see, in this plot ये जो blue वाली लाइन है ना वो आपको मिलेगी, और जो डॉट डॉट किया है तो this is related with respect to mole fraction versus vapor pressure. तो mole fraction मतलब this one, mole fraction versus acetone. देख पहला ग्राफ क्या होगा? तो फर्स्ट ग्राफ विल बी दिस वन. क्लियर? सेकंड ग्राफ विल बी अगेन वी कैन से दैट दिस वन, and third graph is again related with respect to this one. So on the basis of this graph we can find out shape of curve. तो shape of curve यदि hypothetical line के नीचे है
तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव डेविएशन। ऊपर है तो दिस इज नॉर्मली नोन एज पॉजिटिव डेविएशन, करेक्ट।